Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be continuing with the newspaper series and we will be covering 17th of January 2025. So first of all, we saw that India's docking experiment was successful. Two satellites, SDX-01 and 02, they had to be docked. So that is a good news for India because it will be helping India further to set up a in space station. So SpaceX docking, that was important. And now India will be moving further for more measurements for undocking. And India became the fourth country after US, Russia, and China to have this technology of docking and undocking. Then we also see in Lakshadweep, we are moving towards non-conventional sources of energy, जैसे कि यहाँ पे LTD LTTD प्लांट हम सेटअप करने की बात करें, दैट इज लो टेम्परेचर थर्मल desalinization. तो desalinization, it will be developed by NIOT, that is National Oceanography Institute, and also it will be providing 1.5 lakh liters of potable water daily to the citizens. तो चेतलत आइलैंड के ऊपर है, वाटर स्कार्सिटी एंड सैलिनिटी का जो इशू है उसको डील किया जाएगा. So low temperature thermal desalinization plant. Then great anniversaries of peace initiatives. And what is the role played by India in that? So article reflect करता है कि historical peace initiatives का कितना important रोल रहा है and India उनमें क्या रोल प्ले करता है where it is advocating for global peace. Anniversary of 2004 इंडियन सुनामी की बात की जा रही है. The Russell Einstein Manifesto of 1955 and और भी important moments जिनमें पीस को एडवोकेट किया है इंडिया ने. तो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट रहता है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विच रिमेन्स अ क्रिटिकल कंसर्न. इंडिया भी एक ग्लोबल लीडर है दैट इज प्रमोटिंग judicious use of such weapon, such technology, and India is also having no first use policy. So कहाँ पे इंडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकता है? तो इंडिया कैन ऑल्सो यूज द डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस, G20, जो कि इंडिया ऑलरेडी कर भी रहा है वर्ल्ड को और इंक्लूसिव बनाने के लिए, जैसा कि हमने अफ्रीका के इंक्लूजन के साथ देखा भी. चैंपियन करता है इंडिया पीस इनिशिएटिव्स एंड ऑल्सो एडुकेट भी करता है ग्लोबल कम्युनिटी को. सो GS2 GS4 के लिए हम देख सकते हैं एथिक्स के लिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हाउ इंडिया इज एडवोकेटिंग फॉर नॉन वायलेंस. IR के अंदर देख सकते हैं कि important role India can play is playing in peacekeeping, global peace, and also disarmament. Then India and Singapore, they are planning to be a critical partner in semiconductor industry to strengthen India's semiconductor manufacturing capabilities. So recently भी हम देख रहे हैं geopolitical issues की वजह से there is somewhat global semiconductor supply chain crisis. So India is also exploring to diversify, and here with Singapore, it will be enhancing chip manufacturing as a part of Make in India initiative. It is also collaborating and it is aligning its goal of self-reliance in the critical technologies. So Singapore will be playing an important role in that. So GS3 के लिए important हो जाता है and also GS2 जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे इंडिया एंड सिंगापुर रिलेशनशिप्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं विद टाइम. सिंगापुर हमेशा से एक ट्रस्टेड पार्टनर भी रहा है इंडिया का इन ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशंस. तो अभी सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम दोनों की पार्टनरशिप को और बढ़ते हुए देखेंगे. देन लॉन्ग ओवर ड्यू. सो टीबी एक मेजर चैलेंज है. टीबी ट्रीटमेंट में हम टारगेट करते हैं कि कैसे हम अर्ली इंटरवेंशन कर पाए एंड टाइमली मेडिकेशन दी जाए, ट्रीटमेंट हो पाए. सो इट इज
जो टीबी ट्रीटमेंट में एडवांसेस भी हो रहे हैं विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड विद इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, वी आर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग द ट्रीटमेंट टाइम फ्रॉम 6 months to 4 months। तो शॉर्टर रेजिमेंट्स इसीलिए बोला जा रहा है जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड होता है, ताकि अडहेरेंस हम इन्हांस कर पाएं, इफेक्टिविटी इन्हांस कर पाएं एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल बर्डन ऑफ द प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट वो रिड्यूस कर पाएं। बट इसके साथ क्वेश्चन भी उठता है कि क्या वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए इन द लॉन्गर टर्म सफिशिएंट होगा। सो चैलेंजेस ये भी इंक्लूड करते हैं कि स्केलिंग अप दीज रेजिमेंट्स and are also addressing the healthcare system creates a limitation for the authorities, for the doctors. So WHO का भी initiative है and goal है to eliminate TB by 2030। So उसी के लाइन पे एक यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि ट्रीटमेंट के टाइम को कम किया जाए, ना कि एफिशिएंसी को। तो shorter regimens, can they enhance the adherence and reduce the economic burden? That arises as a question. Then space docking, India was successful, but क्यों जरूरी है? Why does it matter? So ISRO successfully docked in the space operation. Docking basically process होता है कि आप दो स्पेस क्राफ्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं इन दी ऑर्बिट। ये कैपेबिलिटी अभी तक सिर्फ 3 नेशंस के पास थी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है एंड फ्यूचर मिशन जैसे कि गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की हम बात करते हैं, वहां पे भी हमें हेल्प करेगा। भारत अंतरिक्ष स्टेशन जब हम बनाने की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें हेल्प करेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन FTITTP, दैट स्टैंड्स फॉर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टूरिस्ट प्रोसेसिंग। ये ऐसा सिस्टम है जो कि इमिग्रेशन प्रोसेस को इंडिया के अंदर स्ट्रीमलाइन कर पाएगा। अभी अपने फर्स्ट फेज में है एंड एम कर रहे हैं हम टू फैसिलिटेट सिक्योर बट फास्टर and smoother immigration clearances for OCI card holders and Indian nationals also. So Bureau of Immigration under the Ministry of Home Affairs becomes important and global trend जिसमें smart immigration system यूज किए जाते हैं बहुत कंट्रीज में, तो उस ग्लोबल ट्रेंड के साथ भी हम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को हम और इन्हांस कर पाएंगे इसकी मदद से। तो इस सिस्टम के अंदर बेसिकली फास्टर क्लियरेंस होगा फॉर द ट्रैवलर्स एंड मेजर एयरपोर्ट्स पे ऑटोमेशन का यूज किया जाएगा, प्री वेरीफाइड डेटा शेयरिंग का यूज किया जाएगा। देन इजराइल एंड हमास इशू, प्रोलॉन्ग्ड इशू है, चलते जा रहा है सिंस 15 months। सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द इजराइल एंड हमास एंड कैसे उसके इम्प्लीकेशन है नॉट ओनली ऑन द रीजन बट ऑल्सो ऑन द ग्लोबल लेवल। So जो सीज फायर है, इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स along with the temporary halt in the military actions also. So both the sides जो हैं they have gained and lost strategically. Israel also seeks to maintain the security, while Hamas की बात करते हैं तो it aims to highlight its resistance, the struggles that they are having. So agreement जो है it also raises question about its durability, जो cease fire है, and also who will ensure the peace in the upcoming time period also in the region. So for IR, it showcases that how the conflicts are shaping and reshaping the geopolitics in the Western Asia and what global implications the things are having on the world. So 150 years of IMD, Indian Meteorological Department, it plays a very important role in maintaining the accuracy in including technology like computing power in forecasting capabilities. We are focusing towards more and more zero error forecasting where the accuracy is more accurate. Then also we are focusing on forecasting at a more regional level so that the true level of devastation can be assessed and
accordingly the arrangements can be made. So it will also be helping in disaster management, agriculture, urban planning. Zero error forecasting is a keyword here. तो उसमें हम AI का यूज करेंगे, बिग डेटा का यूज करेंगे. We will also be integrating localized climate models, जिनकी वजह से रियल टाइम में एक और एक्यूरेसी के साथ हमें फोरकास्टिंग भी मिल पाएगी. तो इसलिए मेट्रोलॉजी प्लस AI का हम रोल इसके अंदर देखेंगे. Then geopolitical upheaval, how it paved the way for Gaza ceasefire, जिसकी हमने अभी बात भी की. तो पावर पॉलिटिक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं. इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, he also turned the domestic political instability into leveraging and for asserting strength through military operations in Gaza and Lebanon, as stated by this article. So Hamas is facing, both the sides are facing the losses, but the regional alliances are also weakening, and the leadership, ethical leadership becomes very important. So Israel's actions, including targeted strikes on Hamas leaders, Iran's defense system, it illustrates the principle of somewhat offensive realism, which is ensuring security through proactive measures taken by the military. Also, जो enduring hostility है between the Israel and Hamas, it remains an example कि कैसे एक security dilemma create हो जाता है in the region, जहाँ पे actions by one party to secure itself, they are perceived as a threat by the other, which leads to an arm race or a conflict on a major level. So regional dynamics भी change होते हैं, और भी रीजनल डायनामिक्स हुए हैं जिनकी वजह से इसराइल हमास के ऊपर भी इम्पैक्ट आया, जैसे कि सीरिया's Assad regime's collapse, which strained the relationships between Iran and its proxies, which reduced Hamas's external support. United States and other global powers की भी जब बात करते हैं, तो they have pressurized both the parties to negotiate for the humanitarian reasons, particularly addressing the civilian casualties and also the problems which of hostages which is rising. बट लिमिटेशन भी है सीज फायर की, एंड उसके सस्टेनेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क. सो क्या वो सच में सस्टेनेबल रह पाएगा, एंड कैन इट रियली कंट्रीब्यूट इन द रीजनल स्टेबिलिटी इन द लॉन्गर टर्म, दैट अराइजेस एज अ क्वेश्चन. Then Indian Navy, it has also introduced 3 new vessels, INS Surat, INS Mormugao, as a part of Atmanirbhar Bharat initiative. So कैसे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं at sea. So इस मुद्दे पे इंडिया ने जो नई वेसल्स लॉन्च की हैं अंडर द आत्मनिर्भर इनिशिएटिव, इंडिया अभी भी रिलाई करता है हेविली ऑन द इंपोर्ट्स, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, जैसे कि प्रोपल्शन सिस्टम, वेपन्स. देन ऑल्सो ये हाईलाइट भी करते हैं कि कहीं ना कहीं गैप है अभी भी, एंड अभी भी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर ही रहे हैं एंड हम सीख रहे हैं विद द टाइम. सो यूएस, चाइना एंड अदर नेवल पावर्स की बात करते हैं तो दे हैव सुपीरियर इंडिजिनस शिप बिल्डिंग capabilities, and India is also learning so that it can also be competitive in the maritime sector also in the upcoming future. तो challenges R&D से related है, indigenous design, and कैसे हम manufacturing की efficiency बढ़ाएं. तो आत्मनिर्भर भारत initiative, it plays an important role in security also and positioning India at a global level. Then also maritime strategy important है, ना कि सिर्फ इंडियन ओशन के लिए बल्कि पूरे ही इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए. एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं इन द डिफेंस टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट, AI डेमोक्रेटाइजिंग टेक डिप्लॉयमेंट ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशंस. सो AI कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट को इन द ऑर्गेनाइजेशन. ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं, इनोवेशन हम कर सकते हैं. AI टूल जैसे कि चैट GPT,
उनकी वजह से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है. Organizations of all size they can innovate. So SEBI, Securities and Exchange Board of India, it has also leveraged AI to enhance its efficiency, to enhance the efficiency of India's capital markets. So technology advancements हो रहे हैं, and we are also empowering a larger pool of professionals who are engaging in complex tasks. So new type of jobs by AI, we can say AI jobs are also being created. So regulator, broker, market participants, it is very critical in creating an inclusive technological ecosystem. So collaboration across the stakeholders, it becomes important. And also the ethical perspective of the governance. Then a train to Kashmir. So upcoming rail link project hai between Kashmir and the rest of the India. That is Udhampur, Srinagar and Baramulla railway project, the USB rail link. It will be connecting Srinagar to the national railway grid. And basically जो feature site is also including world's highest railway bridge जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बिल्ड है. एक्सटेंसिव टनल सिस्टम भी क्रिएट किया गया है. क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले नेशनल प्रोजेक्ट इसको डिक्लेयर किया गया है. More than 41,000 crores have been allocated to this project. क्या क्या बूस्ट करेगा? टूरिज्म तो बूस्ट करेगा ही, बट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल एक्सेस को भी बूस्ट करेगा. बेटर लॉजिस्टिक्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग इवन हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, एप्पल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी. बट चैलेंजेस हैं इन, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वैली के अंदर जो टेरेन है वो हार्श है, एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं. तो सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना लॉन्गर टर्म में, तभी हम बोल सकते हैं कि हम बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएंगे टू द रीजन. सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट GS3 एंड ऑल्सो ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आ जाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफी को हम इंटीग्रेट करते हैं विद यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. देन हमने न्यूज में देखा 8th पे कमीशन will be benefiting 11.5 million central government employees and pensioners. So it will be addressing wage and pension revisions central government employees and pensioners के लिए. It will be taking effect from January 2026 and will be impacting 11.5 million individuals, जिसमें से 6.5 million जो हैं they are pensioners. तो 7th पे कमीशन 2016 में लागू किया गया था. इंक्रीज्ड पे अलाउंस एंड पेंशन बाय 23.55% तब किया गया था. इट रिजल्टेड इन एन additional expenditure of 4.64 lakh crore rupees. That was approximately 9% of the GDP. So impact क्या होगा 8th पे कमीशन का? It will be boosting the consumption due to increased disposable income. It will also risk जो challenge kind of बोला जा रहा है, it will also, it has potential to give rise to the fiscal deficit. It will require cautious planning for the fiscal sustainability. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर हम बोल सकते हैं, बट कुछ फिजिकल इम्प्लीकेशन भी हो सकता है ऑफ दिस एक्सपेंडिचर. हाइड्रोकार्बन सेक्टर जिसमें ऑयल और गैस इंडस्ट्री आ जाती है. इट हैज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन्स एंड जो सेस है टू प्रमोट ग्रोथ एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिवनेस. ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल जो कि इनहांस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्ट्रीमलाइन भी करेगा रेगुलेटरी क्लियरेंस और आर्बिट्रेशन को. सो मेजर डिमांड यही किए गए हैं कि GST को सिंप्लीफाई कर दिया जाए फॉर द फ्यूल प्रोडक्ट्स, rationalization of exploring and the production rules for unconventional हाइड्रोकार्बन जैसे कि कोल बेड मिथेन हो गया या फिर शेल ऑयल हो गया.
So reduction in the cess on the crude oil production to offset the high costs, but challenges हैं जो कि जो सेक्टर है वो फेस करता है. That includes high marketing cost for products like LPG, CNG क्योंकि प्राइस कैप है. Then dependence on the imports for the crude oil, trade imbalance है. Growth in the domestic production becomes important. Reduction in reliance on imports becomes important, and also for energy security. So policies demanding for the oil field amendment bill that will be enhancing the domestic production, and it will also somewhat contribute to the import dependence. So energy security becomes important, role of hydrocarbons becomes important. Even though we are talking about transitioning to cleaner sources of fuels, hydrocarbons becomes and remains a critical component for ensuring energy independence and also energy security of India. In financial year 25 का जो budget है, it also proposes significant changes, specifically to capital gains taxation. And कैसे simplify किया जाए, compliance को enhance किया जाए, clarity को. So current status की भी बात करते हैं. जैसे कि होल्डिंग पीरियड फॉर द एसेट को भी रिवाइज किया गया है. 12 मंथ फॉर लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन किया गया है. इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर जो है 24 मंथ उसको किया गया है. अदर कैपिटल एसेट्स के लिए 36 मंथ्स. सो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो हैं सर्टेन कैपिटल एसेट्स के लिए उनको रिमूव कर दिया गया है फॉर ट्रांसफर आफ्टर जुलाई 3, 2024. So STCG and LTCG. STCG is short-term capital gains, 20% for listed securities, and LTCG is long-term capital gains. So Section 50B के अंदर अमेंड करने की बात की जा रही है जो कि रिकमेंडेशन दिया है टू रिड्यूस द होल्डिंग पीरियड फॉर अनलिस्टेड शेयर्स. कंटिंजेंट टैक्सेशन के साथ और ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए. Next, over 80% firms they are seeking wider PM internship scheme coverage. So PM internship scheme which is involving companies like Vedanta, TCS, Reliance, and we will be providing 1,000 internships जो कि create हो भी चुकी हैं so far, with increasing participation from corporate and the public sector. तो स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए बिटवीन द एकेडमिक सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल डिमांड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. देन ऑल्सो कोलैबोरेशन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूथ एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. So 73% of the companies they believe internships of up to 6 months they are optimal for skill enhancement. Over 76% they prioritize tech driven internships, which reflects a shift towards digital transformation in the industries and the growing demand. So 43% of the firms they are also willing to allocate a portion of their CSR, corporate social responsibility budget, up to 10% towards the internship schemes. तो वो उसमें काउंट कर लिया जाएगा. बट चैलेंजेस भी हैं जैसे कि स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस की जरूरत है जो कि क्लियरली मेंशन करें. Then also ensuring the inclusivity for the smaller companies and sector is very important. So what is the role of PPPs in addressing the employment challenges that is highlighted here? Then also the strategies which are required for the skill development and youth employment basically in GS3 that becomes important here. So PM internship scheme. Then secure your journey and savings to pensions. तो सब्सक्राइबर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बेसिकली वहाँ पे NRIs एंड OCI एनी सिटीजन ऑफ इंडिया उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज. Maturity is for 60 years of age and retirement age.
सो बेसिकली हम देख सकते हैं एनआरआईज एंड ओसीआईज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है एंड उनको भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी. देन फेमा रेगुलेशंस. RBI relaxes the FEMA regulations to boost the cross-border trade. So जो exporters हैं, they can now open accounts in any currency. ये change करेगा and कहीं ना कहीं enable करेगा exporters को to manage better the exchange rate risks. It will also give permission to set up international branches. Authorized banks जो हैं अब open कर सकते हैं branches outside India. So ये जो नए guidelines हैं कहीं ना कहीं on the basis of Foreign Exchange Management Act इनकरेज करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फॉर द एक्सपोर्टर्स एंड फॉर द इम्पोर्टर्स. सिंप्लीफाई कर पाएंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस को. कैसे बूस्ट कर सकते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स को, उसमें भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. ऑलरेडी एमओयू भी साइन कर चुका है आरबीआई विद द सेंट्रल बैंक्स ऑफ यूएई, इंडोनेशिया एंड देन ऑल्सो मॉलडीव्स. It has also allowed NRIs to use such balance in rupees for their uh, foreign investments. So it is basically integrating the economy of India with the global market also. हाईलाइट करता है GS3 में कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड गवर्नेंस के सेक्टर में आरबीआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स आर वेरी क्रिटिकल. सो फेमा एक्ट ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हम और ज्यादा ईज कर पाए. Then partners, not rivals in the delivery ecosystem. Delivery ecosystem जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की सबसे पहले बात करते हैं तो दे कंट्रीब्यूट $40 बिलियन एनुअली टू इंडियाज इकोनॉमी. 1.7 मिलियन पीपल को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. एंड देन जीएसआई स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स. तो जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो बैक ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड करने पे फोकस करते हैं. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो पाए ऑफ द ग्लोबल कंपनीज. बट जो ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर है वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और ऑपरेशनल आईटी सॉल्यूशंस. सो ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर दे आर की पार्टनर्स फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है जो डिलीवरी की बात की जा रही है उसको वो बेसिकली स्केल अप कर पाए. एंड कहीं ना कहीं ओवर रिलायंस का चैलेंज भी अराइज होता है कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है उनका जो डिपेंडेंस है वो ओवर हो जाता है, ओवर रिलायंट हो जाते हैं ऑन दी ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स कुछ स्पेशलाइज टास्क के लिए. तो इंडिया की पोजीशन ये स्ट्रेंथन करता है टेक्नोलॉजी हब के अंदर. इनोवेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं एंड डिजिटल सर्विसेज बोल सकते हैं कि उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो. सो GS3 इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. देन ऑल्सो IT सेक्टर में कैसे हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड जॉब सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर GS2. Tier 2 Tier 3 सिटीज को डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि बेनिफिट भी मिल रहा है. सो कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना जरूरी है, कॉस्ट प्रेशर्स को डिक्रीज करना जरूरी है. देन डिलीवरी डायलेमा, बट यहाँ पे हम डिफरेंट डिलीवरी की बात कर रहे हैं. दी क्विक कॉमर्स कंपनीज जहाँ पे अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी की जाती है जैसे कि जेप्टो बोल सकते हैं या फिर स्विगी, ब्लिंकिट. तो जहाँ पे अल्ट्रा फास्ट डिलीवरीज की जाती हैं विद इन 10 to 30 मिनट्स. क्या कंसर्न रेज हुए हैं उनके क्विक कॉमर्स मॉडल से. ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट जो जाती है टू फुलफिल द अल्ट्रा फास्ट डिलीवरीज वो कई बार आउटवे कर जाती है रिवेन्यू को, जो कि चैलेंजेस क्रिएट करती है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी. रिटेल जो है इट कंट्रीब्यूट्स $883 बिलियन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ इंडिया GDP, जिसमें ग्रोसरी रिटेल कंट्रीब्यूट करता है $620 बिलियन. सो उससे ट्रेडिशनल लोकल किराना स्टोर्स रिटेलर्स उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है.
उनके लिए भी एक चैलेंज क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज होता है कि वर्कर का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो डिलीवरी एजेंट होता है उनके ऊपर एक इंटेंस प्रेशर होता है। सो उनके वर्क कल्चर का क्या क्या हम बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं उनके लिए? कई बार जल्दी डिलीवरी करने के चक्कर में हो सकता है कि उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्योंकि व्हीकल को आप यूज कर रहे हैं फॉर फास्ट डिलीवरी, तो व्हीकल एमिशन भी आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपको रैपिड डिलीवरी करनी है। बट पॉजिटिव आउटकम क्या है? ग्लोबलाइजेशन के साथ हम बोल सकते हैं कि जो अर्बन कस्टमर है वो कन्वीनियंटली एंड किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो रिटेल सेक्टर है उसके अंदर कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है। देन नेक्स्ट अबाउट द एमएसएमई सेक्टर, access to the credit. So MSME sector is also facing challenges in securing loans क्योंकि collateral requirement उनके साथ इतना होता है। प्रपोज भी किया गया है इन द अपकमिंग बजट कि collateral फ्री लोन्स को इंक्रीज किया जाए, that could ease the burden on the MSME sector. challenges होते हैं in accessing the fund, जैसे कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई, जो कि इनेबल करता है कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 5 करोड़ रुपीस एंड इट guarantees the coverage up to 85%. Pradhan Mantri Mudra Yojana, under which 20 lakh rupees of loan are provided, emergency credit line guarantee schemes. तो ये डिफरेंट स्कीम्स हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेड्स दैट इज ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम फॉर इनवॉइस फाइनेंसिंग। तो डिफरेंट स्कीम्स तो हम लेके आ गए हैं, बट क्या वो एक्सेसिबल है एमएसएमई सेक्टर के लिए? एंड कैसे हम कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करेंगे? एमएसएमई सेक्टर जो है उनको रिक्वायर्ड दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द एक्सटेंसिव रेगुलेशंस, जिसकी वजह से ऑपरेशनल चैलेंज कहीं ना कहीं और ऐड हो जाता है। तो large companies can also mentor the MSME, integrate them into a structured supply chain. Fintech firms जो हैं, they should also develop affordable digital solution कि कैसे टैक्स फिलिंग को ईज किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन को ईज किया जाए। क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी पॉलिसीज को बाय द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी? तो वो एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। जो स्किल्ड वर्कफोर्स का भी गैप है, देयर इज लिमिटेड एक्सेस to skilled labor, which also affects the productivity, the efficiency of the MSME sector. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एड्रेस कर सकते हैं इस इशू को। और बहुत सारी एमएसएमई सेक्टर में कंपनीज भी हैं दैट आर स्ट्रगलिंग टू रीच द ग्लोबल एंड द डोमेस्टिक मार्केट्स। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनके पास, अवेयरनेस इज वेरी लिमिटेड। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिन चीजों को हम बोल सकते हैं दैट दे आर क्रिएटिंग अ चैलेंज, दे आर स्लोइंग डाउन द एमएसएमई सेक्टर। तो उन गैप्स को ब्रिज करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना, अडेप्ट करना, साइबर सिक्योरिटी टूल्स को अडेप्ट करना बिकम्स इम्पोर्टेंट। जैसे कि डिजिटल एमएसएमई स्कीम भी है हमारे पास, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो कि इस अडॉप्टेशन को अफोर्डेबल बनाती है एमएसएमई सेक्टर के लिए। देन कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, it surged to 95% approximately of the GDP during the pandemic, बट अभी हम बोल सकते हैं कि स्टेबलाइज हुआ है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 84%, 85%। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि फिजिकल चैलेंजेस कैसे क्रिएट होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सच पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक रिकवरी को साथ ही साथ इंश्योर करना बहुत जरूरी है। हाई डेट लेवल अगर होंगे तो दे रिक्वायर केयरफुल फिजिकल मैनेजमेंट, ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस को हम अवॉइड कर पाए। देन ऑल्सो जो डेट है उसको भी, डेट रिडक्शन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है विद दी स्पेंडिंग ऑन सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा पाए। सो ये चेंज हम देख सकते हैं 90% से 84%। देन फिर से हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, तो HCES, दैट इज हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, वहां से जो डेटा हमको मिला है
हम वहां पे देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एंड कंजम्पशन पैटर्न में। सो ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, इन सब का अडॉप्टेशन बढ़ते जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अर्बन सेक्टर्स में, अर्बन एरियाज में, स्पेशली अमंग द हाई इनकम ग्रुप्स और ज्यादा ईज ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जाता है। ट्रेडिशनल रिटेल जो है वो अभी भी डोमिनेट करते हैं कुछ कैटेगरीज में, जैसे कि इसेंशियल खाना है, फूड है, डेली यूज गुड्स हैं। बट ये शिफ्ट काफी ज्यादा नोटेबल है जो कि हमने देखा लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स में, क्लोथिंग, फुटवेयर, फैशन। तो चैलेंजेस क्या है ई कॉमर्स के लिए? लॉजिस्टिक का चैलेंज बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, एंड अर्बन एरियाज में तो कन्वीनियंस, ईज ऑफ लाइफ हम प्रमोट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रूरल रीजन? रूरल एरियाज में क्या हम सेम स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? वहां पे हम कैसे इस गैप को फिल करेंगे? तो डिपेंडेंस रहता है कई बार डिस्काउंट्स के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। दैट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेबसाइट ऑफ द प्रोवाइडर। तो हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल हम लेके चल सकते हैं जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग जो है इट कॉम्प्लीमेंट्स द फिजिकल रिटेल, जो कि आने वाले टाइम में इमर्ज भी हो रहा है, डोमिनेट भी करने वाला है। सो NCLAT, that is National Company Law Appellate Tribunal, it has admitted the appeal by Meta platform, which was Facebook, against a ban ruling by CCI, that is Competition Commission of India। सो CCI ऑर्डर बेसिकली क्या था कि वहां पे फाइन इम्पोज किया गया था ऑफ मोर देन 200 crore rupees on the Meta app to, it was basically alleged to abuse its dominant position. It banned Meta from sharing the user data across the platforms for 5 years। So इसी की वजह से एक कंट्रोवर्शियल अपडेट भी आया था रिगार्डिंग द व्हाट्सएप्स प्राइवेसी पॉलिसी इन 2021। तो तब भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। सो मेटा का क्या अपील है? तो इट सीक्स टू ओवरटर्न द CCI ऑर्डर एंड इट इज आर्ग्यूइंग, डिमांडिंग फॉर एन इंटरिम रिलीफ, ताकि स्टे किया जा सके ऑन द पेनल्टी एंड ऑन द बैन। सो उसी के लिए जो हियरिंग है वो होगी इन दी लेट जनवरी 2025 ओनली। एंड दिखाते हैं कि बैलेंस करना जरूरी है डेटा प्राइवेसी के बीच में, अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ द टेक जायंट्स के बीच में। सो उसमें CCI अकाउंटेबल रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लेके आता है कि कैसे बिग टेक कंपनीज जो हैं एंड डेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन है, उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? सो फॉर GS2, GS3 इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। So center it plans for more measures to support the small businesses। So trades की हम बात कर ही रहे थे। For MSME sector, that is trade receivable discounting system, जो कि ट्रांजैक्शन अलाउ करता है as low as 1 रुपी to 10 लाख रुपीज। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी देख चुके हैं इन दी प्रीलिम्स पेपर। तो एम करता है कि कैसे कैश फ्लो को हम इंक्रीज करेंगे इन दी MSME सेक्टर। क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं MSME को हु आर फेसिंग डिलेड पेमेंट्स। बट चैलेंजेस हैं जैसे कि हाई कॉस्ट है, तो बैंक जो है वो ऑफन काफी ज्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग।